Ayurveda is trending, but it is really trending in a right way. Ayurveda, people are making videos, reels. Is it cool, or is it also spreading misguidance or misinformation as well? Today we have experts. We have Dr. Anoop with more than 30 years of experience. We have Dr. Hemlata with us. We have more than 1 decade of experience. Dr. Sagarika around 5 years of experience. And I also have around couple of decades of experience now. And we have our host Dr. Ashi to discuss all these aspects in this session today. समझते हैं आज कि आयुर्वेदा के लिए जो इतने वीडियोस बन रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, अच्छी बात है। जो हमारा सॉफ्ट पावर है आयुर्वेदा, वो ग्लोबली स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं. बट देर आर सर्टेन कन्फ्यूजन्स, सर्टेन मिस इन्फॉर्मेशंस. China recently has issued a law that only degree holders are eligible to give opinions on health, finance, law, and many other professional domains. Hope India will also have that one day. On that note, let's start this session today. Okay, so it's me, Dr. Rashi, taking over, and I'll start with a very light, fun icebreaker questionnaire for our respected doctors and guests. So we'll do this hot or not kind of a thing. So I'll state an opinion, and you'll have to tell कि it's hot or not. So there's this trend going on which says कि Ayurveda detox in 3 days. Is it hot or not? Not. 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 Exactly. Okay. And there's this water fasting going on wherein people go on water fast for like 30 days, 60 days, 120 days. Is it hot or not? Not. Not. Okay. Vata personality test. Like people do this Vata Kapha Pitta personality test online, stating these opinions ki हाँ अगर they talk a lot, they're Vata. If they get angry faster, they are Pitta. So is it hot or not? Not. Nice. Hair growth with 1 clove or elaichi. Not. Impossible. Okay. And what about Dincharya hacks? Is it hot or not? Hot. Is it hot? It's hot. Okay. But under the guidance of a Super. True, but like, so the Ayurveda is all about good and bad. Basically, both are the aspect of it. कि अगर आप guidance में चल रहे हो, तो it's very nice. very. It's a blessing. And when you do it according to the social media, या फिर your research, that little research you do on social media or internet, but it can go wrong with you. Yes. Okay. Abhi we are doing a rapid fire session on Ayurveda. So basically you'll have to tell the answer बहुत जल्दी से. So I'll start with Dr. Sir and let's go. So one myth you hate about Ayurveda being presented on social media. It's like one of the most important thing is शिलाजीत सभी के लिए आपको खिलाना है, जबकि आयुर्वेद में कुछ ग्रंथों में ये पूरी तरह प्रोहिबिटेड किया गया है लेडीज के लिए. Ma'am, what is the most dangerous Ayurveda trend you've seen? बहुत सारे जितने भी भस्म मेंशन्ड है क्लासिकल टेक्स्ट में, उनको प्रोटीन पाउडर बना के, और वो भी नॉन आयुर्वेदिक बंदे प्रोटीन पाउडर्स में हम यहाँ से भेजेंगे, और ये इलीगली ऐसे प्रोटीन के नाम पे छपा. एंड आई थिंक वो तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है जो लॉ है हमारा, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो वैसे भी नहीं ले सकते. भस्म, सारी भस्म, खास तौर से भस्मों को, वो तो इंडिया स्वर्ण भस्म को तो इतना वो कर दिया है कि जैसे कोई भी ले सकता है 1 सेकंड में. और जिसमें कि आयुर्वेद से अगर कोई डरता है ना कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो पर्टिकुलरली भस्मों को लेके ही है कि वो हर किसी के लिए नहीं है. और वो सभी उस प्रोटीन पाउडर को बना के लाइक सोना चांदी च्यवनप्राश इस तरह से चल रहा है. Okay, let's go. Sir, coming on to you, what would be the most relatable thing you've seen through social media about Ayurveda? So हम जब बात कर रहे हैं अभी, आई थिंक आई हैव सीन कपल ऑफ वीडियोस व्हिच इज गुड, रिलेटेबल, एंड आल्सो आई अप्रिशिएट दोज हु हैव डन दोज वीडियोस. एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें उन्होंने बताया कि गोल्डन मिल्क या जो करक्यूमिन हम या हल्दी की हम बात कर रहे हैं, उसको दूध में डालने के क्या फ़ायदे हैं. तो एक तरीके से ये सालों पहले लोग पीते थे, बीच में कुछ जनरेशन्स में ये ट्रेंड ख़त्म हुआ, बट स्पेशली आफ्टर कोविड एंड नाउ बीइंग आयुर्वेदा टॉक्ड सो मच,
तो पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग गोल्डन मिल्क एंड करक्यूमिन और हल्दी दूध के साथ उसके फ़ायदे बताए गए. तो आई रियली लाइक दैट वीडियो. एंड ये हम सबको इसको समझना चाहिए फ़ायदों को, और इसको अपने ट्रेंड्स में और अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए. कमिंग ऑन टू मैम, मैम आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को और भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए टू स्टॉप एंड प्रिवेंट दीज इनएक्यूरेसीज? Actually, Ayurveda is a science, a medical science. It's not an home remedy type. ठीक है, you are taking medicines according to your kitchen spices. But जब disease का issue आता है तब आप किसी भी random reel या इंस्टा को देख के आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया. It is not the right way. Ayurveda is not a thing of promotion. It's the science of experience and practice. जो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, यू शुड गो देयर एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, देश, काल, औषध, निर्णय, इसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे. दैट इज द राइट वे ओनली. ठीक है, तो नाउ गेटिंग बैक टू द कोर पैनल डिस्कशन, आई विल स्टार्ट विथ डॉक्टर सागरिका मैम. I wanted to ask this question to you कि is this 15 second reel format, is it compatible with the depth of Ayurveda? नो, नॉट एट ऑल. 15 सेकंड में आप किसी के ना तो दोष, प्रकृति, जठराग्नि, जिस पे आयुर्वेद वर्क करता है, जो जितने सारे प्रोस्पेक्टिव्स हैं, क्राइटेरिया हैं आयुर्वेद के काम करने के, ये आप जज ही नहीं कर सकते. दूसरी चीज़, ऐसी ऐसी रील्स जो 15 सेकंड्स में बनती हैं, फॉर एन एग्जांपल जाति आदि ऑयल, सहचर आदि ऑयल मिला के फेस पे लगा लो, जो कि आयुर्वेद की मेन मेडिसिन है वुंड हीलिंग के लिए. सही बात. पूरा एनोरेक्टल जाते आदि तेल पे चलता है और फेस पे लगा लिया. मैं इतनी शॉक थी उस टाइम पे. 15 सेकंड में सिर्फ मिथ दिया जा सकता है. मेरी जितनी भी रील्स मैंने बनाई हैं वो मुझे उसका मेन ये लगता है कि वो वायरल भी नहीं हुई क्योंकि मैं 1 मिनट में पूरी बात बोल ही नहीं पा रही, हो ही नहीं सकता, और 1 मिनट के बाद वो वायरल नहीं होती. तो ये सिर्फ बिजनेस और व्यू प्लान्स हो सकते हैं कि कैसे रील वायरल हो तो आप कुछ भी बोल दो. Nice. Completely agree with your opinion, ma'am, because this is the thing people want to know कि क्या होता है आयुर्वेदा. बट ये गलत तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, बिकॉज एक नॉलेज को भी ना आप एक दायरे में रह के डिलीवर कर सकते हो हर जगह. बट स्टिल गेटिंग फॉरवर्ड, मैं आना चाहूँगी डॉक्टर पीयूष जुनेजा के पास. सर, आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि हाउ कैन व्यूअर्स डिफरेंशिएट जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम आयुर्वेदा डॉक्टर्स, ऑथेंटिक आयुर्वेदा डॉक्टर्स, एंड दीज स्यूडो साइंस क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स? वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा अपने ऑडियंस का भी. ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया हुआ है कि आपको सोशल मीडिया पे, सी विद ड्यू रेस्पेक्ट, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमें अच्छा लगता है कि बीइंग एन आयुर्वेदा डॉक्टर आप आयुर्वेदा की बात करें, एंड विच इज़ गुड. बट इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी है. आयुर्वेदा के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव में समझा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च. मीन्स एक हेल्दी इंडिविजुअल की हेल्थ को एनहेंस किया जाए, और एक डिजीज़ या किसी को अगर प्रॉब्लम या बीमारी है तो उसको ठीक किया जाए. अब अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए, और उसके नीचे उसकी डिग्री या उसका क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एटलीस्ट कुछ तो रिलेटेबल क्वालिफिकेशन हो. अगर एक बीकॉम है और वो आपको हेल्थ की एडवाइस दे रहा है तो ऐसे ही है कि आप बंदर के हाथ में उस तरह दे रहे हैं. तो उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप कोई कंटेंट ग्रैस्प करें या उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में, तो कंटेंट क्रिएटर का नाम और उसकी डिग्री एटलीस्ट चेक कर लें, या उसके बारे में गूगल कर लें एक बार कि वो वाकई क्वालिफाइड है भी वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए या नहीं. एंड इसके अंदर आपको जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिजीज़ के लिए, तो हमेशा एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड वैद्य के गाइडेंस में ही जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए. ट्रीटमेंट एटलीस्ट सोशल मीडिया से ना करें. आपको डाइट लाइफस्टाइल में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था कि षड रस, जो हमारे 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो वो 6 रस हमारे भोजन में से निकलते दूर होते जा रहे हैं, उसको लेके आइए. आप दूध के साथ फ्रूट का जो कॉम्बिनेशन है, शेक्स, वो मिथ्या है यार, या उसको पॉइजन बोला गया आयुर्वेद में, उस पर कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो बनाया कि नहीं करना चाहिए, विच वी ऑल्सो अप्रिशिएट. बट स्टिल उस लेवल पे समझें कि जहाँ पर वो कंटेंट क्रिएटर का क्वालिफिकेशन रिलेटेबल है, और वो जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको आपको अडॉप्ट करने से पहले वैलिडेट या चेक आप ज़रूर कर लें. किसी भी नियर बाय आयुर्वेदा डॉक्टर्स से, आप हमारे प्लेटफॉर्म इंडियन वैद्यास पे भी जाके क्वेरी कर सकते हैं, या किसी भी जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, ज़रूर किसी ना किसी वैद्य से कनेक्ट करें और उनसे पूछें कि क्या ये डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड टिप्स हैं. वो फ्री में गाइडेंस आपको मिलती है इंडियन वैद्यास पे भी, तो वो ज़रूर आप उनसे चेक कर लें एक बार.
ऑथेंटिकेट कर लें, उसको वैलिडेट कर लें एंड ट्रीटमेंट बिना किसी वैद्य के अंडर गाइडेंस के ना शुरू करें. Let me ask one question to my seniors or junior as well. तो आपने क्या ये नोटिस किया है जब से डैश जीपीटी करके मार्केट में आया तब से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं. इससे पहले ये आयुर्वेद फेक आयुर्वेद इन्फ्लुएंसर्स थे ही नहीं. पढ़ के दिखाओ सही था, 5 साल का सिलेबस पढ़ के दिखाओ. बट क्योंकि इजी क्यों हो गया है, आपने कुछ भी डाला आई वांट टू मेक हेयर ऑयल और आपको वो सारे रेफरेंसेस वगैरह सब बहुत इजीली मिल रहे हैं. सॉरी ब्रो, 5 साल और डैश जीपीटी में बहुत फर्क. आई वुड लाइक टू ऐड, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं सर गूगल पे मैंने ये पढ़ा था. इट कैन हार्म यू इन मैनी वेज. आपको लगता है कि कोई भी भस्म अगर कोई वैद्य आपको दे रहा है, उस भस्म की क्वांटिटी, उस भस्म की क्वालिटी और उस भस्म की मेकिंग प्रोसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो देख रेख में ही, अच्छे वैद्यों की देख रेख में बनाई हुई फार्मेसी से ही उसको लेना चाहिए. अगर आप चैट जीपीटी से या गूगल देखकर कोई भी दवाई किसी भी तरह की लेते हैं तो वो ना तो आपकी प्रकृति के अनुसार है, ना वो आपके देश के अनुसार है, ना आपकी व्याधि के अनुसार है, ना आपकी जठराग्नि के अनुसार है. मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं कहना चाहूँगा, इग्नोर करना चाहूँगा इन चीज़ों को. कृपया चैट जीपीटी और गूगल के भरोसे अपना इलाज किसी भी सूरत में ना कराएं. like to get back to मैम एंड मैम से मेरा ये सवाल बहुत देर से मैं पूछना चाहती थी, लेकिन नाउ आई कैन कम्प्लीटली आस्क दिस क्वेश्चन कि मैम व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग, कि व्हाई आर दीज पीपल, जो हमारी जनता है, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू क्विक आयुर्वेदिक हैक्स. हल्दी में नमक मिला के कर लिया, टूथपेस्ट के जैसे यूज़ कर रहे हैं इसको, या फिर रैंडमली एक इलायची खा ली तो इसका इलाज हो गया. डेली प्याज खा रहे हैं, प्याज का रस सर में लगा ले रहे हैं. एनीथिंग इज हैपनिंग, एनीथिंग एट दिस पॉइंट पीपल कैन इवन put food on their head and call it Ayurveda, right? So why is this happening कि people are attracted to this quick Ayurvedic hacks? एक्चुअली जेट युग चल रहा है और जैसा ही सर ने बताया सब गूगल चैट जीटीपी, तो सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए. तो पीपल आर सर्चिंग मैनी थिंग्स एंड दे गेट कि ये दे अप्लाई. जितना जल्दी वो देखते हैं समझते हैं उतना जल्दी अप्लाई करके एक्सपेक्टेशन भी होती है कि उतना जल्दी रिजल्ट आ जाए, बट एक्चुअली होता नहीं है. देन वी शिफ्टेड टू हर्बल थिंग्स कि क्या पता केमिकल चीज़ों से हमको इतना हार्म हो गया ना, गो टू हर्बल थिंग्स. तो वही माइंडसेट उनका रहता है कि जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी हिसाब से ये फॉर्मूला भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन नेचर अपने वे से काम करती है. एक सीड को आप ज़मीन में डालोगे एंड यू थिंक कि ये केमिकल डाल दो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट वो क्वालिटी नहीं आएगी और वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाह रहे हो. तो थिंग्स को अपने तरीके से ही ग्रोन अप होता है. तो आयुर्वेदा साइंस उसके हिसाब से बना है. वो आपका प्रॉपर असेसमेंट एंड व्हाट इज़ गुड फॉर यू, क्या रिजल्ट है, क्या प्रोसेस रहेगा, मेकिंग अनमेकिंग जो भी रहता है. बट थिंग्स टेक टाइम. नेचुरल थिंग्स नेचुरल वे से ही प्रॉपर रिजल्ट देती है. लेकिन ट्रेंड बन गया है कि फटाफट हो जाएगा, लेकिन होता नहीं. तो फिर आयुर्वेद में भी वही एक्सपेक्टेशन रखता है, लेकिन हर चीज़ अपने समय से ही होती है. Very nice. आयुर्वेद एक नाम ही ऐसा है जिसपे इंसान सोच के भी ये नहीं सोच पाता कि कुछ गलत होगा आपके साथ. True. आयुर्वेद पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जब एजुकेशन बढ़ रही है तो पेशेंट की भी एजुकेशन बढ़नी चाहिए. पेशेंट भी माइंड से तैयार होना चाहिए. आप जब हर चीज़ में आप प्रोडक्ट के मेंशन सारी चीज़ें देख रहे हो तो आप ये तो देखो आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो क्या वो आयुर्वेद डॉक्टर है या नहीं. कम से कम ये देखो, अगर आप आयुर्वेद को ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट आयुर्वेद डॉक्टर होगी, नॉट एनी इन्फ्लुएंसर और चैट जीपीटी जैसे वो उसने कहा. बेसिकली ये सो अभी दिस इज गेटिंग अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि हम इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट के आगे या फिर किसी भी चीज़ के आगे हर्बल लगा लेते हैं या फिर आयुर्वेदिक लगा लेते हैं तो इट गेट्स वायरल वेरी सून, द सेल्स हाइक लाइक क्रेजी. तो ग्रीन कलर की पैकेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि दिस इज आयुर्वेदा. वेदा इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन एंड योर इमेजिनेशन, राइट? तो आप समझ रहे हो ना, हर्बल और आयुर्वेद जहाँ जुड़ रहा है वो हाइप पे जा रहा है ना. Exactly. तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि आयुर्वेद पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, पर आयुर्वेद डॉक्टर्स तक तो आ ही नहीं पा रहे. 18 साल की quick hacks ना. एक 18 साल की बच्ची मैंने देखी जिसने पूरा अपनी वेबसाइट आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बेच रही है. कोई डिग्री नहीं है, पता नहीं कहाँ. कम से कम आयुर्वेद डॉक्टर्स तक तो आए. That's a valid point. So coming back to sir, and this question of mine has been lingering in my mind बहुत देर से, लेकिन I like to ask it
कि सर डज सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयुर्वेदा मीन्स एक्सेसिबिलिटी या फिर जस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, और अगर एक्सेसिबिलिटी और मिस इन्फॉर्मेशन एक साथ आ भी रहे तो लाइन कहाँ है दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन की? देखिए, मैं इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑथेंटिसिटी को हम मतलब इग्नोर कर रहे हैं टोटली। हम लोग उस चीज़ को जिसके लिए गवर्नमेंट हम लोगों को 5.5 साल पढ़ाती है पहले, जिसको हम आयुर्वेद आचार्य बोलते हैं, आजकल कोई भी आचार्य लिख के बैठ जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड। आपको लोगों को ये भी सोचना होगा कि अगर गवर्नमेंट किसी को पढ़ा रही है, क्योंकि एक स्पेशल पैथी है, अगर आज की तारीख में मैकेनिक का काम कोई भी करने लग जाएगा, जैसा अभी डॉक्टर पीयूष ने बोला कि मैकेनिक का काम कोई भी करेगा तो वो गाड़ी बेकार करेगा। पहले आपको सीखना होता है, उसके बाद आपको करना होता है। दिस सेम थिंग अप्लाइज टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की जो विधि है वो इतनी पुरातन है और इतनी आधुनिक है, इतनी साइंटिफिक है कि उसको आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। इट सेज एवरीथिंग अबाउट वन। आपकी 3 तरह की प्रकृति उन्होंने बताई है, उसमें द्वंद्वज बताई हैं, फिर प्रकृति के बहुत प्रकार बताए हैं, लेकिन मेन 3 है, वात पित्त कफ, जो त्रिदोष है। उसके बाद आपके पंच महाभूत बताए हैं, पंच महाभूत के बाद आपके सप्त धातु बताए हैं, फिर उसके बाद आपकी जठराग्नि बताई है। इस एक चीज़ को भी अगर आप इसमें इग्नोर करते हैं तो आप किसी भी तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आजकल क्या हो रहा है, कोई भी अपना उठा के बैठ जाता है, वो कहता है कि नहीं जी, आप नमक, तेल, सरसों का तेल मिलाइए, नमक मिलाइए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए और आप उसको मंजन की तरह यूज़ करिए। वो ये नहीं बताता कि अगर आप उंगली से लगा रहे हैं तो नमक की जो रेशे होते हैं वो आपके मसूड़ों को नुकसान भी कर सकते हैं। उसको आप मुंह में रखिए, मुंह में रख के उसके 5-10 मिनट उसका, जिसको हम गंडूश बोलते हैं, कवल बोलते हैं, उसको धारण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं दैट इट कैन हेल्पफुल, नहीं तो वैसे वो नुकसान कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंप्लीफाइड होना अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, ऐसा भी अच्छा लगता है। कुछ वैद्य हैं जो डिफरेंट जड़ी बूटीज के बारे में बता रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो उसको देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ की आप गमी बना दो, अश्वगंधा आप सभी को देने लग जाओ, ब्राह्मी आप सभी को देने लग जाओ। एक उम्र के बाद ब्राह्मी को देने का कोई मतलब नहीं है। सिंगल एक उम्र के बाद, जिसको हम बोलते हैं, जो एक श्लोक है हमारे यहाँ आयुर्वेद में, बाल्यम वृद्धेशपि मेधा, वो जीवतो दृश्यतम हसेत, मतलब हर 10 साल में ये हमारी घटती चली जाती है। बालपन हमारा शुरू के 10 साल में चला जाता है, 20 साल के बाद हमारी वृद्धि जो है वो कम हो जाती है। छवि जो आपकी लुक है, जिसको हम गांव में छवि लॉन बोलते हैं, एक लुक अट्रैक्शन बोलते हैं, वो 30 साल के बाद आपका ख़त्म हो जाता है। 40 साल की उम्र के बाद लोग कहते हैं आपका सीखना बंद हो जाता है। ठीक है, वो सब अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को, सिंपल एक चीज़ को पकड़ के बैठते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं मैंने सब कुछ देख लिया, आई थिंक ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं। आयुर्वेद और सिंपल इज टोटली अपोजिट। आयुर्वेद सिंपल हो ही नहीं सकता। अगर सिंप्लीफिकेशन होती तो 5 साल की डिग्री क्यों लगती? 1 महीने में सिंपल है, 1 महीने में करके खत्म करते। 5 साल में 18 सब्जेक्ट्स पढ़ना, सिंप्लीफिकेशन कहीं दूर दूर तक नहीं हो सकता। एंड इन कंपैरिजन टू मॉडर्न, ऐसा नहीं कि अकेले आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद के साथ आपको जो एलोपैथी है उसके आपको डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, वो सब पढ़ाई जाती है। तो इट्स डबल, हम लोगों के लिए डबल बर्डन होता है। तो बेसिकली हमने ये देखा होगा कि ऐसे हैक्स हमें नहीं मिलते कि पैरासीटामोल को क्रश करके सॉल्ट के साथ मिक्स कर लो, ये खा लो। ये सब चीज़ें आयुर्वेद के साथ ही लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक इट्स हर्बल एंड इट विल नॉट अफेक्ट यू इन द लॉन्ग रन, बट दे डू नीड टू नो कि इट विल वन डे एंड इट विल हिट हार्ड। अभी तो कुछ ही चीजें आई हैं। नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। हम यहाँ पे किसी पैथी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट ये समझना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम आयुर्वेद की जो बात कर रहे हैं, आयुर्वेद अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो जितनी भी पैथीज़ हैं उन सब में सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुराना है, और ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नॉलेज है, जो हमारी लाइब्रेरीज जलाई गई, उन सब के बावजूद जो नॉलेज हमारे पास बची है, उसको बचा के हम आज, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, जो कि आयुर्वेद है, राइट। तो
तो अगर कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल्स गलत होते तो शायद यहाँ तक ये आयुर्वेद नहीं पहुँचता। फादर ऑफ सर्जरी अभी भी सुश्रुति हैं और काफ़ी सारे ऑपरेशन थिएटर में उनकी मूर्ति और उनकी फ़ोटो लगा के उनको प्रणाम करके ही सर्जन सर्जरी स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन इज चरक। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री है, बट क्योंकि भारतवर्ष पे कई सालों तक गुलामी रही, वो जो एक स्लेवरी माइंडसेट है वो आज तक हम हिंदुस्तानियों के अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है, खासकर जब हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं मेक इन इंडिया, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छुड़ाई है कि हम स्वदेशी अपनाएं, तो फिर हम स्वदेशी चिकित्सा छोड़ के विदेशी चिकित्सा और पाश्चात्य चिकित्सा के लिए फैसिनेटेड क्यों हैं? हम मानते हैं कि अगर इमरजेंसी, आईसीयू, लाइफ थ्रेटनिंग या ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो हमें भी वहीं जाना होगा, बट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करें, इन्फेक्शंस की बात करें, तमाम बीमारियों की बात करें, तो हमारी स्वदेशी चिकित्सा में ऐसे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं। लेकिन ये इतना सिंप्लीफाई नहीं है जितना हमें लग रहा है। हमारे ऋषि मुनियों का आईक्यू लेवल, ब्रेन लेवल हमसे बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेडिकल साइंस, अगर इसको हम ऐसे समझें। वहाँ तो 100-150 दवाइयों में पूरी चिकित्सा खत्म हो जाती है, यहाँ तो 1000 से ज़्यादा द्रव्य हमें कॉलेज में पढ़ा दिए जाते हैं। सही। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो वो 10 गुना है अगर हम उसकी बात करें, तो इट्स नॉट दैट सिंप्लीफाई जिसमें लगता है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे टेक्निकल डिस्कशन इस पॉडकास्ट में नहीं करे हैं। किसी भी द्रव्य में अगर हम उसकी वीर्य विपाक, मतलब उसकी पोटेंसी, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन से लेके वो किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, अगर उस सब में जाएंगे तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल विच इट लुक्स। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप उससे मोटिवेशन लें। आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देख रहे हैं या कंटेंट देख रहे हैं, आप प्लीज़ उससे मोटिवेटेड हो जाएं कि आयुर्वेदा से कुछ हो सकता है। बट अगर आयुर्वेदा को अडॉप्ट करना है तो डेफिनेटली यू नीड टू कनेक्ट ए वैद्या। सो यू कैन टेक मोटिवेशन फ्रॉम इन्फ्लुएंसर बट अडॉप्ट आयुर्वेदा अंडर ए गाइडेंस ऑफ ए वैद्या। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक का हर एक की ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, इवन उनका जो खान पान है वो ऋतु के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। मॉडर्न में अगर आप देखेंगे पिछले 20 साल में, आई एम सॉरी टू से, कोई भी नई एंटीबायोटिक नहीं आई है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जो है वो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं एलोपैथ में। अब उसके अगर कैलकुलेशन में अगर आप चलोगे तो इफेक्ट एक्चुअल में कहाँ हो रही है? हमारी बॉडी। तो आयुर्वेद में लिखा गया है और ये कहा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है यानी आपकी बॉडी में अगर इम्यूनिटी अच्छी है, कोरोना काल ने हमको ये दिखा दिया है, हर लोग को, मतलब कोरोना वायरस ऑल ओवर इंडिया था, ऑल ओवर एनवायरनमेंट था, लेकिन उससे जो इफेक्ट हुए वो वही लोग हुए जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी, या जिनका लाइफस्टाइल गलत था, या जिनको ब्लड शुगर या हाई बीपी वगैरह कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह थे। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद हमको हमारे जीने के साथ साथ हमारे एक एक कार्य को उन्होंने बांटा हुआ है और एक एक चीज़ के लिए अलग अलग औषधि उन्होंने बताई हुई है। तो कृपया, मेरा एक मानना ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर फॉर योर ट्रीटमेंट, बेटर यू शुड गो ए ट्रस्टेड क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी। जैसे इंडियन जो भी स्थापत्य कला है, मूर्ति कला या ज्योतिष का है, कुछ भी है, तो हमारा जो एंशियंट चीज़ें थी ना वो बहुत ही साइंटिफिक और बहुत मतलब रीज़न था उसमें, एक रिजल्ट था, एक बहुत स्टडी के बाद बनी। तो आयुर्वेदा भी उसी टाइम से निकला हुआ साइंस है। तो हमें हमारी पैथी पे ट्रस्ट होना चाहिए। उसको इतना सिंपल कि हाँ कुछ भी सुना, देखा, रील में देखा और हमने उसको मान लिया, दैट इज़ नॉट द थिंग। तो जो हम रेस्पेक्ट ज्योतिष को देते हैं, स्थापत्य, मूर्ति कला या जो भी हमारा डांस कल्चर या जो भी इंडियन स्क्रिप्चर्स बने हैं वो उसी लेवल का है। तो एज ए इंडियन वी शुड प्राउड ऑन दैट पैथी। तो हमें उतना सिंपल नहीं बनाना चाहिए कि कुछ भी ले लिया और हो गया, रिजल्ट नहीं मिला तो हमारे पास कुछ नहीं है। इट्स नॉट द वे। Thank you so much, ma'am. This was the best closing of this panel discussion. But I'll like to wrap up and get for a takeaway round. Go for a takeaway round. I'm sorry. Starting from you, sir. What's one thing you wish every Indian understood about Ayurveda? मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ट्रस्ट, और सेकंड थिंग कि ये इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, तो यू शुड गो टू ऑथेंटिक डॉक्टर्स। Same goes for you, ma'am. Just wanted to take your note on it. ऑथेंटिक आयुर्वेद की अगर बात की जाए ना, तो देखो
आचार्य सुश्रुत जी ने भी ना एक श्लोक लिखा था, ये फाइट आज से नहीं है, ये फाइट तब से है जब उन्होंने ये लिखा था कि जो अच्छे वैद्य से ली जाने वाली चिकित्सा अगर मूर्ख वैद्य से ली जाएगी तो विष का काम करेगी। तो अगर आपको चिकित्सा चाहिए तो आप ऑथेंटिक आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओ, विष चाहिए तो आप ओपन है सब जीपीटीज वगैरह के लिए। ग्रेट, राइट। सो बेसिकली हमें ये समझना है यहाँ पे आज के इस पॉडकास्ट और एक डिस्कशन के बाद भी कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, आयुर्वेद के ऑब्जेक्टिव्स में अगर आपको आहार विहार लाइफस्टाइल डाइट में कोई ऐसी टिप कहीं मिलती है, आप एक हेल्दी हैं। इसको जो सुन रहे होंगे वो दो कैटेगरी में हम इसको समझते हैं। आप हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, बट आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। खुदा ना करे कोई ऐसा दोबारा से इन्फेक्शन या ऐसा दौर आए कि हम अपने आप को बचा लें, तो उसके लिए हमें इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है। अभी भी कई तरीके के वायरस और इन्फेक्शंस हैं। तो अगर आप हेल्दी हैं और हेल्दी को और हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो आप आयुर्वेदा के डाइट और लाइफस्टाइल की टिप्स और ज्ञान को तो भर भर के लें। जो हम किसी को भी यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, अच्छी बात है। आप सब लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं वो ये ना सोचे कि हम आपके अगेंस्ट हैं इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड करने में। हम चाह रहे हैं कि आप भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, बट उसकी एक लाइन ड्रॉ ज़रूर करनी पड़ेगी कि भाई ठीक है, हमें टिप मिली, हमें ज्ञान तो कहीं से भी मिले उसको लीजिए, बट उस ज्ञान को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने से पहले एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद डॉक्टर या वैद्य से उसके बारे में, जिसको बोलते हैं सहमति या ओपिनियन, या ये ज्ञान मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं, वो ज़रूर एक बार चेक करें। एंड अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो डेफिनेटली फिर ज्ञान लेने का भी स्टेज आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैद्य के अंदर लेके जाना चाहिए, उसके अपने सुपरविजन में, एंड उनके थ्रू ज्ञान लें और उसको अडॉप्ट करें। तो ये थोड़ा सा एक थिन लाइन ज़रूर अपनी लाइफ में ड्रॉ करें। आप एक इंजीनियर हैं, आप एक सीए हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, पुलिस हैं, कुछ भी हैं आप अपनी लाइफ में, एक होम मेकर भी है, एक हाउसवाइफ जो होती है होम मेकर, वो भी जो ज्ञान रखती है घर को चलाने का, वो आप और मैं नहीं उसको ऐसे चला सकते जैसे वो एक होम मेकर या हाउसवाइफ उस घर को चलाती है। या होम मेकर में अभी मेल्स भी आ गए हैं, तो उसमें वाइफ हस्बैंड दोनों ही एक तरीके से जेंडर न्यूट्रल है। तो जो घर को चलाने का ज्ञान है, जिसने उस घर को परिवार को चलाया है, वो ही चला सकता है, दूसरा नहीं चला सकता। तो ऐसी आपके हेल्थ के लिए एक वैद्य है जिसको भारत सरकार ने डिग्री दी है, उसका रजिस्ट्रेशन किया है, उन्होंने रेगुलेट किया है। BAMS डिग्री ज़रूर मिनिमम चेक करें अपने रजिस्टर्ड वैद्य में, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर मेंशन होना चाहिए अगर वो आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये कुछ लीगैलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी हैं, उसको ज़रूर आप वैलिडेट करें, एंड उसके हिसाब से अगर आप आयुर्वेदा को अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक सिस्टम है जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, एनहेंस करेगा। एंड जितनी बीमारियां, मतलब अगर हम बोलें कि हमारे एक्सपीरियंस में 100 से ज़्यादा तो ऐसी बीमारियां जो हमने देखी हैं कि जो किसी भी एलोपैथी से इलाज करा नहीं पा रहे थे लोग बाग, आयुर्वेद में आए और आयुर्वेद से उनको सॉल्यूशन मिला, हीलिंग मिली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट में देना चाहूँगा। ब्लिंकिट और स्विगी और जोमेटो के ज़माने में जहाँ पर फास्ट डिलीवरीज की लोगों को आदत है, तो लोग चाहते हैं कि आयुर्वेद भी फास्टेस्ट रिजल्ट दे। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद फास्ट नहीं है, आपको आयुर्वेद सेकंड्स में भी रिजल्ट दे सकता है अगर आप पंचकर्मा समझें, आप अग्निकर्म समझें, आप काफ़ी सारी आयुर्वेदिक की मेडिसिन को समझें अगर एक वैद्य के अंडर। लेकिन वो उसका एक टीज़र होगा। अगर आपको उसका टेलर और पूरी पिक्चर देखनी है तो कुछ पेशेंस ज़रूर रखें। एक बेसिक छोटा सा फंडामेंटल है साइंस का कि हर सेल 3 से 6 महीने लगाता है रिपेयर या हील होने में। तो आयुर्वेद उसमें एज ए कैटलिस्ट भूमिका निभाएगा और उसको हील या नर्चर रूट कॉज से तभी कर पाएगा जब आप एटलीस्ट 3 से 6 महीने का टाइम देंगे, और थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है अगर आपकी सालों की। लोगों को क्या है, 10, 15, 20 साल से डॉक्टर साहब परेशान हैं, क्या आयुर्वेद हमें 15 दिन या 15 मिनट में इसका सॉल्यूशन दे सकता है? तो इस मानसिकता को थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आयुर्वेदा आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। बॉस, जैसे आप कह रहे हैं कि ज्ञान अगर चाहिए तो आप ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन अपनाने के लिए आयुर्वेद डॉक्टर्स पे जाएंगे। पर मैं ये बोल रही हूँ, ज्ञान देने वाले भी आयुर्वेद डॉक्टर्स भी हैं। अगर ज्ञान लेना ही है तो आयुर्वेद डॉक्टर्स के सारे अब तो ज़्यादातर आयुर्वेद डॉक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स बन के आ रहे हैं, आयुर्वेद को बाहर लेके आ रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज्ञान भी लेना है तो भी ऑथेंटिसिटी से लीजिए ना, तब भी उनके पास जाइए ना, जो अच्छा जो है डिग्री होल्डर ज्ञान देने वाले, उनसे लीजिए, सही तो मिलेगा।
जैसे एक मेरे पास एक जस्ट अभी चल रहा है केस है, एक एडवोकेट है, उसका किसी लैब में उसने टेस्ट कराया और उसका फॉल्स रिपोर्ट आई, एचबी बहुत कम आ गया। तो उसने सारा वो चैट जीटीपी एंड गूगल सर्च मारा कि वाई 14/6 आ गया, और उसमें प्रॉब्लम सिर्फ था कि फॉल्स रिपोर्ट थी, लेकिन उसने उसका स्लिप चला गया बिकॉज ऑफ होल नाइट वो रिसर्च कर रही है कि मेरा क्या करूँ कि ठीक हो जाए अपने मन से, जो भी उसने ट्राई की मेडिसिन ये वो, एंड रिजल्ट में वो मेरे पास आती है कि अब मैं 10 दिन से सोई नहीं हूँ, मेरा बीपी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, मेरा एसिडिटी सब कुछ खराब हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो प्रॉब्लम था कि उसने कहीं से भी पढ़ा, कुछ भी किया और मेरे पास आ गई। सिंपल मैंने उसे कुछ जो भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वापस उसको नेचर की तरफ डाइवर्ट किया एंड सी गेट फास्ट रिजल्ट। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। So now closing this panel discussion, we would like to thank our respected guests for joining us on this panel discussion. Thank you for joining us.